Yes, madam, please start your lecture. I have introduced you, the participants. Please start. Okay, thank you, ma'am. जी मैम। So, good morning, everyone. Okay, okay. And Good morning, ma'am. good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. Okay, please good morning, madam. mute your Good mic, morning. please. Mute your mic. All the participants, please mute your mic. Good morning to everyone. So, it's very nice to see many familiar faces also. So, it is indeed a proud privilege and honor for me to interact with the Learned Forum as a resource person in this program. And my heartfelt thanks to Professor Nasreen and Professor Abbasi ma'am for inviting me in this platform. So let's start today's interaction. And please let me know whether I'm properly audible or not. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Audible. Audible. Yes, Yes, audible. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Kiranji, Thank you. audible. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's start today's topic. And because this is education refresher course, and so I'll relate each and everything with the education. And my today's topic of interaction is empowering educators, AI in enhancing teaching methods. These days, because this is the era of technology, and everything everywhere nowadays, we are integrating this technology in our teaching and learning process. Just think about few things. Long back, I had heard a poem which was related to the you all must have heard about the अशोक चक्रधर, हास्य कवि थे वो. और Yes, ma'am. एक बार उनकी कविता सुन रहे थे, एंड इन हिज पोएम ही वाज सेइंग कि मैंने एक रास्ते में ऐसा यंत्र पाया जो कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकता था, कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है, वो सब हम सुन सकते थे. एंड इट वाज रियली वेरी नाइस पोएम. उस पोएम में उन्होंने कहा कि मैंने अपने वो यंत्र लेके मैं अपने घर आया, और मैंने घर में मेरा एक मित्र आया. मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस मित्र के दिमाग में क्या चल रहा था वो मैंने सुना, और सुन के जब उसको वो एक्सप्लेन करने लगे तो इट वाज वेरी फनी ऑल्सो. तो नाउ वी कैन रिलेट दीज थिंग्स विथ टूडेज एआई टेक्नोलॉजी, कि आज कंप्यूटर और मशीन सच में ऐसी टेक्नोलॉजी हो गए हैं कि वो हमारे मन को पढ़ सकते हैं, कि व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट वी आर thinking about the future. Everything machine know that what to do, how to do. And because these days, when these three things means three things which will be very, very important and possible in future. You know what you can think means, now if I'll give you the option that what you want to be in future, if I'll give you three things. Number one is teleportation, कि आप अपने आप को कहीं भी ले जा सकें, टेलीपोर्टेशन. सेकेंड इज इनविजिबिलिटी, कि आप गायब हो सकने की क्षमता रखते हो. एंड टाइम ट्रेवलिंग, यानी आप पास्ट में जाना चाहें, फ्यूचर में जाना चाहें, तो आप इनमें से कौन सी ऐसी चीजों को करना पसंद करेंगे. जस्ट थिंक अबाउट इट. थ्री ऑप्शंस आई एम गिविंग यू: टेलीपोर्टेशन, इनविजिबिलिटी एंड टाइम ट्रेवलिंग. And just if you will imagine about all those things, earlier it was all fantasy, but nowadays these things are possible just because of AI. And in future you will see that it will become a reality, that we would be able to do teleportation also, invisibility, because we have seen many examples also कि आजकल जापान में एक ऐसा कपड़ा आ रहा है, आप उसको अपने सामने लगा लीजिए तो आप गायब हो जाएंगे. ऐसी मशीन आ रही कि आप उसमें बैठ जाएंगे तो आप अपने पास्ट में जा सकते हैं, आप अपने फ्यूचर में जा सकते हैं. और ये जो होलोग्राम आने लगे, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी आने लगी है, इसकी हेल्प से आप टेलीपोर्टेशन भी कर सकते हैं कि wherever you want you can go there. तो इतनी सारी चीजें, and this is all just is going to be possible just because of artificial intelligence and many other
techniques which we are seeing in the present era. Now the transformation means the things, what is happening. If you are not able to know about all these things, you can see that if you have migraine, then what happens, hypertension, stress. But if you are not having a knowledge of AI and latest technologies, then what will happen to your personality? You can see in this image. Now, this is the era of digital transformation. Digital transformation means transformation in technology, and it has changed the outlook of our livelihood also. With so many innovations, new ideas, the scenario is changing every moment. And as we see in the mobile world, the mobile launch become old just within a matter of few days. So as we are living in the era of technology, it is mandatory for all of us, especially when we are talking about the teachers. So it is mandatory for all of us to be well versed and updated with changing technology. Whatever subject we are teaching, whatever specialization we are having, but we need to be well versed and updated with changing technology, and that is very, very important. Because information technology allows learning everywhere. Nowadays also you are learning from your place. आप कहीं भी बैठे हैं, but with the help of online mode, we are able to learn from anywhere, anytime, with no disruption, with or interrupting in the class. And there is much scope of revising difficult lessons, also explore the new things they find interesting. Means most of the things are very easy for all of us. And we can say with the help of these two lines that वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है या दौर की मजबूरी है, वक्त का तकाजा है या दौर की मजबूरी है, ऑनलाइन डिजिटल का ज्ञान हम सब के लिए जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है. विदाउट दिस nowadays or in future we will not be able to survive. So in digital transformation, we are seeing many things. Digital empowerment of teachers, and how we can make ourselves very empowered with the help of all these digital technologies. Today, I will discuss about all these things. Means the digital empowerment of teachers encompasses a multifaceted approach aimed at enabling teachers and students to thrive in the digital age. And digital empowerment not only enhances the teacher's capabilities, but also contributes to the overall development and resilience of educational communities in increasing interconnected world. These days we are living in the global village. हमें एक सेकेंड में अगर हमें यूएस में, कनाडा में, कहीं भी दुनिया के कितने किलोमीटर दूर कहीं भी रहना हो, within few seconds we can get connected with anyone. अब यहाँ पे आप देखिए कि why teachers and educators need to train in the current education scenario. Why? Because there are many things, and these many things, whenever we are talking about all these things are very, very important. Now we can see that how scenario is changing, how technology is changing our life. Technology has become an integral part of our daily life, and it has both positive and negative effect on our behavior, attitude, emotions, and these machines are regulating our behavior. You can see that these machines are regulating our behavior pattern. बहुत सारी चीजें आप देखिए, व्हाट्सएप से हम इतने इमोशनली जुड़ जाते हैं, हमारे किसी अपने का अगर प्रॉपर मैसेज नहीं आता है, वो कनेक्टिविटी नहीं रखता है, तो हमें बड़ा बुरा फील होता है. जबकि हम जान रहे ये मशीन है, हो सकता है अगले को टाइम ना मिला, हो सकता है ऐसा हो वैसा हो, लेकिन देन ऑल्सो वी आर कनेक्टेड through these machines, and these things are affecting our life also. Now you can see कि we have become dependent on autocorrect. कुछ लिखना होता है, कुछ का कुछ लिख देते हैं. We all have been in a situation where we accidentally send a message with a typo or misspelled word, and we rely on autocorrect to save us from the embarrassment. And sometimes autocorrect can be a source of humor also.
कई बार होता है कि हमें एक बार लिखना था हार्टफेल थैंक्स और वो ऑटो करेक्ट ने लिख दिया हार्ट बर्न। तो सोचिए जिसके पास वो मैसेज गया होगा, हमने ध्यान भी नहीं दिया, तो कितनी हंसी उड़ी होगी या कितना उन्होंने फील किया होगा कि मैडम आखिर लिखना क्या चाह रही हैं। तो these things are not very good because we are most of the time we are dependent on autocorrect. Even in our research articles, research papers, what we are doing, we are copying and pasting the things. We are not bothering about many things. If any one of you have to ask question, you can ask. Amrita Srivastava ma'am is raising your hand. Do you want to ask any question? Amrita ma'am? Okay, I think by mistake. Okay. So we have become dependent on autocorrect, but where we need to be a cautious, that we need to learn as a teacher. आप देखिए बहुत सारी बार क्या होता है कि हम जब ऑटो करेक्ट की बात हो, चाहे हम these days we are using ChatGPT, AI tool, कि most of the time we are copying and pasting whatever we are getting from the ChatGPT, we are just copying and pasting all the things. But as a teacher, we need to learn these things, how to use these things in a proper way. जनरेटिव एआई जो होता है उसका रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन सोशल मीडिया हैज चेंज हाउ वी इंटरैक्ट विद ईच अदर. We now have access to wider audience and we can connect with people from all over the world with just a few clicks. And you all must know about the FOMO, FOMO. सुना है आपने ये शब्द? FOMO, fear of missing out, means social media has also made us more prone to FOMO. कि हर समय हम क्या करते हैं, oh, let me check my WhatsApp, let me check my Messenger, let me check my these things. कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत ज्यादा ये हमसे कुछ छूट जाए. ऐसा ना हो हमने 10 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन नहीं देखा तो ऐसा ना हो कि हम दुनिया से कट जाएं, हम ये चीजें ना देख पाए. ये एक इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो रही है हम लोगों में. Then next is we can't live without our smartphones. You have seen the present generation also, not only the upcoming generation. हम लोग का भी यही हाल है कि we are not able to survive without a smartphone. And this smartphone have become an extension of our body. आप देखिए, आप बहुत रेयर होता होगा कि आप मोबाइल भूल जाते होंगे. वो हमारी बॉडी का एक पार्ट जैसा बन गया है. एंड वी panic when we misplace this mobile phone or forget them at the home. कितना बेचैनी हो जाती, कितनी परेशानी हो जाती है. Means this smartphone is very, very important nowadays. Without this, we are not able to survive. Now you can see the love-hate relationship. This is also happening. Means this latest technologies, this is affecting our behavioral pattern also. Means email has revolutionized the way we communicate, but it has also created a never-ending stream of messages like these social media, messenger, that we feel obliged to respond it. अगर हमारे पास कोई मेल आ गई तो हमको लगता है कि immediately we should answer that mail. और अगर हम आंसर इमीडिएट नहीं करेंगे तो even you can see, especially in the corporate world, they will give you a so cause notice also कि आपने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया. दूसरी चीज लव हेट रिलेशनशिप. आप देखिए कि अगर गलती से आपने इमोजी भेजना था स्माइली और गलती से आपने भेज दिया वो रेड वाला फ्यूरियस सा इमोजी सेंड हो गया, तो सोच लीजिए आगे जिसको आपने भेजा है क्या होगा, आपके टर्म्स कैसे होंगे. यानी इतना हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमको लगता है कि अगर किसी ने सैड फेस भेज दिया है तो पता नहीं कौन सी ऐसा कहर ढा दिया उसने हमारे ऊपर. यानी हम लोग इतना ज्यादा मशीन में इस तरह से ऑब्सेस्ड हो गए हैं इन चीजों को लेके. आपका कोई बहुत ही नियर और डियर वन होगा, अगर आपने देख लिया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑनलाइन एंड नॉट आंसरिंग टू योर मैसेजेस, तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा. और बुरा लगने पे क्या होगा कि आप कहेंगे नाउ ब्रेकअप, अब हमें इससे बात नहीं करनी. दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन आर this social world also and in technological world also. Now you can see
virtual assistant have become our best friends. Virtual assistant, इस पे एक बहुत अच्छी कहानी भी है, अभी latest I have read that, कि once Alexa told their the master that today I will also take leave, I will also be on holiday. जैसे आप लोग एक वीक में लेते हैं, हम भी लेंगे, और ऐसे करके उसने क्या किया, कहा कि आज मैं रेस्ट करूंगा. तो जो लोग इस पे डिपेंडेंट रहते हैं उनकी पूरी लाइफ अपसेट हो गई. They were not able to log in for the if they have to they have to do some online work. They were not able to remember the password. क्यों? वो सारा काम Alexa करता था उनका. They were not able to switch on, switch off the equipments which were at their places. तो ये सब क्या है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज इट इज हैपनिंग, नॉट इन इंडिया. लेकिन इंडिया में भी जो हाई क्लासेस लोग हैं, दे ऑल आर equipping their whole house with all these equipments. कि वो उठते ही सबसे पहले क्या करेंगे, भाई हमारा भजन लगा दो, हमारे लिए ये कर दो, वो कर दो, एलेक्सा, ये सारी चीजें उनकी ऑटोमेटिक हो रही हैं. तो these are becoming our best friends. Without them we are not able to survive even. But what is actually happening, we have become lazy because of technology. And we now have devices that can turn on our lights, adjust our classroom means our home temperature, also even order food for us. And it's very funny to think that we are becoming so dependent on technology that we don't even want to lift a finger anymore. बस हम बोल देते, पहले तो हम हाथ से वो कर देते थे, लेकिन अब क्या होता है कि हम सीधे ऑर्डर करते हैं और चीजें हो जाती हैं. वी आर एडिक्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो. शॉपिंग आप देखिए कि अननेसेसरी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑब्सेस्ड फॉर शॉपिंग. अननेसेसरी वी आर क्रिएटिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन आर. अगर हमारा शॉपिंग में कुछ छूट गया, नहीं वो हुआ, तो क्या होता है कि दीज थिंग्स आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. फिर उसके बाद वी आर oversharing the things on social media. Just you see, if we are teachers, so what should we share on social media? Especially our academic achievements. But what we are doing, wherever we are going, हम लोग travel करने जा रहे हैं, fun करने जा रहे हैं, या कुछ भी unnecessary we are posting everything which are related to our life. हर चीज हम उसमें शेयर कर रहे हैं. That is not good. Means we should share the things accordingly only, according to our profession, according to the need, according to availability of the things. Otherwise, unnecessarily, we should not share everything on the social media. And the very, very important thing, which we are doing, means we are obsessed with taking selfies. और selfies has become a cultural phenomenon. अभी एक चीज आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट बताएं. स्पेशली एक रिसर्च में हमने पढ़ा था कि जो लोग बहुत सेल्फी लेते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी पड़ जाती हैं. तो बी कॉशियस ऑल्सो कि ऐसा क्यों होता है. मे बी बिकॉज ऑफ रेडिएशन या जो भी होता हो, आई डोंट नो द रीजन. लेकिन उसमें उन्होंने जब लिखा था तो और भी वो लगा कि हाँ, बिकॉज अननेसेसरी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग सेल्फीज. और सेल्फीज भी कितनी, एक बार में हम 10-20 सेल्फी खींच देते हैं. तो दिस इज नॉट गुड. एंड दीज थिंग्स आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमें खुद को भी रोकना होगा और अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को समझाने की बहुत जरूरत होती है. एंड unnecessary what we are doing, we are watching more and more videos than ever before. आपने देखा होगा कि हम लोग जब रील देखना आजकल शुरू करते हैं तो हम लोग सोचते हैं, ओ जस्ट फॉर 2 minutes आई वॉच द रील्स. लेकिन वो 2 मिनट कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है. यानी क्या हो रहा है 24 hours में, how we are killing our time, because these laptops and mobile phones, these were meant to save our time. But what we are doing, we are wasting our time in these technology. So why I was telling you all these things, because these things are becoming a very, very important part of our life. But as a teacher, as a learner, what we need to do, what we need to
adopt in the present era, in the technological era. That is very important to know. Now we will see, if we will see that to whom we are dealing with and in future to whom we have to deal with. अब हमको जो हमारी आने वाली जनरेशन है उससे कैसे डील करना चाहिए. ये जितनी भी AI टूल्स आ रहे हैं, अब nowadays we are having lots of things, lots of AI tools, but we should be selective. It depends on your subject, it depends on your content, that what type of things you need and what type of tools you need to adopt. हर चीज हमको आ जाए, हर चीज हम कर ले, it is not possible. But if you will be selective, that this kind of tool will be very beneficial for us. और actually होता क्या है कि हम अगर हर टूल के बारे में बहुत ज्यादा जान जाते हैं तो हम ये नहीं जान पाते हैं कि what will be the ethical use, ethical issues in using that particular. Most of the time what we are doing, we are copying and pasting the content. We are not bothering about the plagiarism, we are not bothering about the copyright issues. That is not good for us as a teacher. आप देखिए जब हम वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में जाते हैं, इसलिए हमें ये दो लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं कि संभल संभल कर रखते हैं कदम, संभल संभल कर रखते हैं कदम इस जहां में. इस जहां का मतलब है इस वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि पता है नफस नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है, नफस नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है. मतलब है कि पल पल का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है. whatever we are copying and pasting, whatever we are writing, whatever we are speaking, whatever videos we are uploading, we are accountable for each and everything. And especially as a teacher, we are responsible for everything, whatever we are posting on website or in virtual world or in online platform. So be cautious, and time to time that is why I'm telling you all these things. Now you can see right now we have now one question I'm going to ask you. Just let me know about the generation gap. ये generation gap का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं? Please unmute yourself and just give me answer. Generation gap. Ma'am, about thinking. About thinking, okay. Ma'am, it's basically the gap between the thoughts of two different generations. Okay, gap between the two generations, okay. Madam, commitment also. Commitment also of different generations. जी शालिनी जी. Of Shalini ma'am, your voice is not audible. Different culture. Chandra ji ne ka different culture, yes, okay, right. Different perspectives and ideologies. Okay, different perspective, different, okay, very right. Difference of lifestyle. Lifestyle, okay, Socialization is different. Different age. different age, okay. Ma'am, the difference Daily life. Pardon, Difference in our daily life We also. socialized very Okay, differently. okay, right. different thinking, ma'am. Different thinking. हाँ, Hello, yes, ma'am. Anuradha ma'am. Difference between Ma'am, we socialized between very opinions and differently, outlook. ma'am, in two Okay. generations. Okay, Vidhanji, you are saying something? Age gap, It ma'am. is gap between Okay. this is the gap between generations and standards. We can say standards. जो standards मैंने set किए हैं जरूरी नहीं है वही standards मेरे बच्चे भी set करें. जो traditions मैं follow कर रही हूँ, it's not necessary they भी वो भी follow करें. So and some values. तो ये सारी चीजें time period में जब changes आने लगते हैं from different generation, then we can Sometimes set ma'am, that this is generation gap. misunderstanding also. Very right, very right. Okay, it is not. Generation gap is also about difference between नई understanding. पीढ़ी के लिए बदलते जीवन मूल्य भी है, उनकी इच्छाएं भी हैं, बच्चों के ऊपर इसके तो रहन सहन में भी, खान पीन में भी परिवर्तन. Misunderstanding also creates, ma'am, sometimes. Different mindsets. Okay, very right. बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज दिए अपने.
between children and different parents. views. Ma'am, different experiences also count in generation gap. ओके ओके, वेरी राइट। अभी आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो आज की जनरेशन है वो कहती है कि हमारा 20 मिनट खर्च नहीं होना चाहिए, हम लोग गाड़ी से जाएंगे, जबकि पिता अगर है तो वो कहेगा कि नहीं नहीं हम लोग पैदल चलते हैं, 20 रुपए बचेंगे। तो दोनों अपने अपने उसमें गलत नहीं है, बट व्यूज बिलीव्स में जो अंतर आता है पीढ़ियों का, कि whenever we are discussing the concept of generation gap, it encompasses the divergence in thought process, जैसा आप सब ने कहा अभी कि divergence in thought process, beliefs, opinion and even value system between different generations. अब हम अगर आज के संदर्भ में देखें इसको कि हमारे सामने किस तरह की पीढ़ी है और फ्यूचर में हमें किस तरह की पीढ़ी को पढ़ाना है, एंड इवन इफ यू आर हैविंग, बिकॉज यू ऑल आर डूइंग रिफ्रेशर कोर्स, तो हम ये मान के चलते हैं कि यू मस्ट हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, या उससे ज्यादा ही होगा। आप देखिए जब आपने पहले अपने बैच को पढ़ाया था और आज के बैच को पढ़ा रहे हैं, उनके व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता जा रहा है। अर्लियर दिस गैप वाज फॉर 10 years, 2 years, बहुत ज्यादा गैप होता है, लेकिन आज 6 महीने में ही ये गैप हमको दिखने लगता है। It means in today's context, this gap is often perceived between the youth, their parents and their grandparents. And this term generally refers to the disparity in knowledge and familiarity with interactive technology between educators and young individuals. अब आप ये देखिए कि हम लोग आपस में जब पढ़ते पढ़ाते हैं, एंड दीज डेज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसी का माइक खुला हुआ है, ओके, थैंक यू। तो अब हम इस समय अगर आज के संदर्भ में देखें कि राइट नाउ वी आर हैविंग 3 kinds of digital generation. Digital generation means first generation is digital immigrants, and these individuals belong to the older generation, means those who raised before the advancement of the digital era. They may have had the adapt to technology later in life, making them less proficient, and they may not be very comfortable in using all these equipments. इनको हम कहते हैं डिजिटल इमिग्रेंट्स। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि those people, those who still use register to note down each and everything, वो आज भी चीजों को प्रॉपर लिखते हैं, फोन नंबर को डायरीज में लिखते हैं, सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये वो जनरेशन है those who are using all traditional things and all traditional approaches in their life. दूसरी जो जनरेशन है डिजिटल जनरेशन, वी आर कॉलिंग देम डिजिटल नेटिव्स, मींस दिस ग्रुप ऑक्यूपाइज अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन full immersion in technology and reliance on traditional methods. They have experienced of transition into the digital age, but they may still retain some familiarity with the pre-digital practices also. कि वो पहले जो होते थे वो चीजें भी हम यूज करते हैं, and maybe you and me belongs to this generation, कि हम लोग पुरानी चीजों को भी यूज करते हैं और आज की चीजों को भी यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल नेटिव्स। बट to whom in future we need to teach, जिस जनरेशन को हमको भविष्य में पढ़ाना है या अब जो हमारे सामने आ रहे हैं, they are digital inhabitants and they are representing the youngest cohort, and these individuals have grown up and they are right now they are surrounded by the technology. They are grown up with the technology. For them, digital tools and platforms are the integral part of daily life. They exhibit a natural adaptness in navigating and utilizing these resources. ये जनरेशन है पैदा होते ही जिसको कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसे लगता है कि खिलौना है उनके लिए। तो ये जो जनरेशन है, मीन्स दिस अडेप्टेबिलिटी इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू देयर एक्सपोजर एंड इमर्शन इन डिजिटल एनवायरनमेंट फ्रॉम अर्ली एज। तो ये जो जनरेशन है, मीन्स इफ देयर विल बी गैप बिटवीन these two generation, means like suppose I am a teacher and I belong to digital immigrant generation, then how I will teach this digital inhabitant? So we need to bridge this gap, that how to teach this upcoming generation. यानी अब हमारे सामने जो जनरेशन आ रही है, they are
digital inhabitant and they belongs to generation alpha. यानी जिन बच्चों का जन्म 2010 के बाद हुआ है, they are called generation alpha. And educating generation alpha is very, very typical. It is not easy task because to this generation we need to teach them accordingly. आप देखिए पहले हम क्या करते कि पहले हम as a teacher थ्योरेटिकल चीजों को बस बच्चे के दिमाग में उस ज्ञान को उड़ेल देते थे, और आज टेक्नोलॉजी क्या करे, टेक्नोलॉजी इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ टीचर, कि सारे ज्ञान को हम उनके मस्तिष्क में डाल दे रहे हैं. लेकिन सही गलत और जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉपर नॉलेज होता है, उसको कैसे करें विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज टूल्स, AI टूल्स, दैट इज very, very important and this is a very big question in today's era. तो अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं. इतना ज्यादा जो हमारी जनरेशन अल्फा है उसको पढ़ाने के लिए, मीन्स ओवर द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स टीचर्स हैव सीन अ न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट, दोज हु हैव नेवर नोन अ वर्ड विदाउट द इंटरनेट. ये वो जनरेशन है जिसने कभी जीवन जीना ही नहीं सीखा बिना इंटरनेट के, एंड मेनी ऑफ देम ग्रू अप immersed in a digital world only. वो सारे ऐसे हैं, और इस जनरेशन को हम कहते हैं कि दिस इज द जनरेशन who born totally in 21st century, जो आज 21st century में जिसने जन्म लिया है. और 21st century क्या है, for to teach this generation we need to know about the 21st century skills also. As a teacher, we need to know about all these things. Means AI is also a part of 21st century skills. कि अगर हम उनको 21st century की जनरेशन को हमें पढ़ाना है, 21st century की जो ये जनरेशन हमारे सामने है, अगर हमें इसको पढ़ाना है, इसको हम चाहते हैं कि भविष्य के लिए हम इसको तैयार कर सकें, तो हमको क्या करना होगा, we also need to know and learn about all these equipments. तो अब AI क्या है, AI को हम बहुत ज्यादा इसकी डेफिनेशन और वो नहीं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बट सिंपल कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को अब धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है. मींस आर्टिफिशियल क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स रादर देन अकरिंग नेचुरली. जो नेचुरल इंटेलिजेंस हमारे पास होती है वो इंटेलिजेंस मशीन ने ले ली है, और जो चीजें हम एक बार में कर पाते थे वो उसको कई गुना कम समय में हमारे लिए करके दे देती है. And there are many examples of AI also. बहुत सारे ऐसे examples हैं जो आपको शायद पता हो चाहे न पता हो, direct, indirect, they are affecting our life. Means artificial intelligence क्या है, simulation of human intelligence in machine. They are programmed to think and learn like human beings. अभी आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम जो इसका पैटर्न देखें कि जो typical problems to which AI methods where we are applying teaching methods, these things are very, very important to know. अभी इसमें आप एक चीज को देखिएगा कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें भविष्य की जनरेशन को पढ़ाना है, उनको सिखाना है, तो हम कैसे इन चीजों को करेंगे. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है. Please let me know if any one of you have gone through the books of Yuval Noah Harari. नाम सुना है किसी ने Yuval Noah Harari का? Any one of you? Yuval Noah Harari. Okay, ठीक है. अगर नहीं सुना है, just I would like to tell you that अभी जो एक Yuval Noah Harari, he is a very great historian, और उन्होंने 3 बड़ी क्लासिक बुक्स लिखी हैं. एंड एज अ टीचर वी नीड टू रीड दीज बुक्स. क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पे आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दिस ऑल्सो. अब यहाँ पे हाँ भगत जी कह रहे हैं सेपियंस. यस, उनकी जो पहली किताब है उस किताब का नाम है होमो सेपियंस. होमो सेपियंस में उन्होंने कहा है कि आज जो हम ह्यूमन बीइंग हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे हमने सरवाइव किया, कैसे हम यहाँ पे, यानी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि कैसे हम एक सिंपल एक जानवर से, एक प्राणी से कैसे हम एक इंसान के रूप में, होमो सेपियंस के रूप में सबके सामने आए.
फिर उसके बाद आगे उन्होंने यही लिखा, और जो कि हमारे आज की सिचुएशन से रिलेटेड है, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। आप देखिए, राइट नाउ वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, lots of problems. For example, you can see that these days we are struggling with climate change also. एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उन्होंने अपनी दूसरी किताब में इस तरह की 21 प्रॉब्लम जो 21st सेंचुरी में हो रही हैं उसके बारे में लिखा, और उसमें उन्होंने उसके सॉल्यूशंस भी बताए। एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी आज की जनरेशन है, क्या कभी वो हमारी आने वाली सरकार से जब वो इलेक्शन में वोट देने जाती, क्या कभी पूछती है कि क्या आपकी, या उनको उन्होंने सजेशन दिया कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को जब भी वो वोट देने जाए तो आने वाली सरकार या जो उसके जो लोग खड़े होते हैं उसमें इलेक्शन में, उनसे पूछें, प्रश्न पूछें कि आपकी अभी आज के लिए जो न्यूक्लियर वेपन है, क्या इसके लिए कोई पॉलिसी है? इफ यू विल गेट द करेक्ट आंसर देन गिव देम वोट। फिर इसके बाद उन्होंने दूसरा कहा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, डू यू हैव एनी पॉलिसी रिलेटेड टू इट? तो ऐसे लोगों को वोट दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए आप क्या करें। आप देखिए, you all must have worried about the climate change. अभी देखिए कि इस समय लखनऊ में हम लोग हैं और लखनऊ में टेम्परेचर इज टचिंग 50 डिग्री सेल्सियस, और आप भी जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा भी और बढ़ेगा तो धरती का क्या होगा। तो ये हमारी 21st सेंचुरी की जो समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। और उसके बाद जो उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है वो है होमो डियोस, एंड ही सेड दैट कि how AI is going, means in this book he has told about the brief history of tomorrow, that tomorrow how people will survive. ये जो हमारी डिजिटल जो जनरेशन अल्फा है, इसको हमको पढ़ाना कैसे चाहिए कि ये जॉब मार्केट में जॉब पा सके, क्योंकि हम इसके बारे में चिंता ही नहीं कर, हम अपने बच्चों को बस डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो करके डिग्रीज दिलाते हैं। एंड ही सेड that in future no one will bother about the degrees, only those who will be having skills, they will get the job. केवल वही लोग जॉब पा पाएंगे जिनके पास कुछ स्किल्स होंगे। और आप आज देखिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे, जस्ट अ मोमेंट, कि आज हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे हमारा कोई भी इस तरह का, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिजायरेबल हैं, जो मांगी जाते हैं। अभी देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोज हु हैव डन बीटेक, वो सिविल इंजीनियरिंग में अपना वो करते हैं, बीटेक करते हैं और जॉब पाते हैं कंप्यूटर साइंस में। यानी अगर उनके पास वो स्किल्स हैं तो दे विल गेट द जॉब, लेकिन वो चाहे कितने ही बड़े बीटेक एमटेक हो, इफ दे आर नॉट हैविंग स्किल्स दे विल नॉट गेट द जॉब। तो उन्होंने अपनी बुक में ये बहुत अच्छे से बताया है कि AI could pose a significant threat to the humanity if it is not carefully controlled. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा फ्यूचर में। He believes that, means Yuval Noah Harari, he said that AI could eventually surpass human intelligence, leading to the creation of a new super intelligent species that could potentially enslave or even exterminate the humans. और आप देखिए ये चीजें अभी हो रही हैं धीरे धीरे, कि जो ये इस समय आप देखिए कि गूगल एंड फेसबुक, these machines, these software, they are able to know about us. आप सिर्फ एक बार लॉगिन हो जाइए, उसके बाद ये गूगल, फेसबुक जैसी चीजें आपसे ज्यादा आपके बारे में जानती हैं। तो अब भविष्य में हम क्या करेंगे? पहले होता था ना, किसी को किडनैप कर लिया तो धमकी दे के पैसा मांगते थे कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है, हमें इतनी फिरौती दीजिए तब हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन आज ये सब जमाने खत्म हो गए हैं। अब क्या करते हैं, वो सीधे आपके डेटा को किडनैप करते हैं और कहते हैं कि अगर हमको इतना पैसा नहीं मिला तो आपका डेटा हम हैक कर लेंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सोचिए अब कैसा, किस तरह का जमाना आ गया है। डॉक्टर आजमी, यू वांट टू आस्क समथिंग?
आपने हैंड रेज किया है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने युवल नोआ हरारी ने कहा है कि नाउ वी नीड टू लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स। एक एग्जांपल आपको बताते हैं इसमें उन्होंने कैसे इन चीजों को किया है। उन्होंने कहा कि होमोडियोस हम क्यों कह रहे हैं इस जनरेशन को कि इन फ्यूचर होमोसेपियंस विल कन्वर्टेड इनटू होमोडियोस। होमोडियोस का मतलब है धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग है उनकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। फिजियोलॉजी कैसे चेंज होगी? क्योंकि आप देखिए थ्रू आउट द डे वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, we are sitting in front of computer, throughout the day we are having our mobile phones in our hand, throughout the day what we are doing, we are using our fingers on laptops, on keyboards। तो फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, यानी हमारी गर्दन आगे की तरफ आ जाएगी, हमारे कंधे ऐसे झुक जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड हमारी स्ट्रेट होने के बजाय कर्व शेप हो जाए। इस तरह से उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल दिए। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा, एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा जैसे कभी होता है ना किसी के हाथ में चोट लग जाए तो डॉक्टर क्या करता है, अगर फ्रैक्चर हो जाए हाथ में तो वो क्या करता है, दिस इज अ वेरी जनरल पोजीशन, एक सिंपल पोजीशन, तो वो ऐसे करके प्लास्टर बांध देता है ताकि उसके हाथ में अगर वो फ्रैक्चर है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के युग में अगर डॉक्टर ने ऐसा बिना रिसर्च के उसके हाथ में प्लास्टर सिंपल बांध दिया तो उसके हाथ में एक के बजाय 4 और फ्रैक्चर हो जाएंगे। Why? Because nowadays our physiology is changing, because throughout the day we are holding mobile phones in our hand like this we are holding our mobile phone। अब जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारी जो नेचुरल पोजीशन है वो कुछ ऐसी हो गई है हाथ की। तो अगर रिसर्च के बिना यहाँ हाथ में प्लास्टर ऐसे के बजाय ऐसे कर देंगे तो कुछ ना कुछ डैमेज और हो जाएगा। यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये है कि विदाउट डूइंग रिसर्च, विदाउट नोइंग द प्रेजेंट सिनेरियो, वी कैन नॉट ट्रीट एनीथिंग, इवन व्हेन वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स आल्सो। आप देखिए, आप उनके माइंडसेट को पढ़े बिना आप कोई भी चीज उनको पढ़ा लीजिए, वो सब वेस्ट चली जाएगी। And this is the era when we need to learn many things, many other things which are related to latest technology। आप देखिए, as a teacher हम लोगों को अब UGC क्या कहती है, if you want to enhance your API, तो वो कहते हैं कि आपको मैंडेटरी फॉर्म में क्या क्या और आना चाहिए। आप तो पढ़ना लिखाना तो जानते हैं, साथ में आपको यू नीड टू डेवलप MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, you need to develop open educational resources, you need to know about the e-content। और e-content ये भी नहीं कि कॉपी किया पेस्ट कर दिया, no, you need to know about the proper guidelines of developing e-content। ये सब क्या है? And for all these things, or for all the things which we need to develop, we need to know about the latest digital tools also। अगर हम इन टूल्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कभी भी सीख नहीं सकते हैं कि हम कितना मूव बनाएं, हम कितनी चीजें, जैसे नसरीन मैम इज वेरी एक्सपर्ट इन डेवलपिंग मूव, उन्होंने स्वयं के लिए भी बनाए, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया जब तक उन्होंने इस फील्ड की नॉलेज गेन नहीं की, उसका रिसर्च नहीं किया। Because nowadays we are not having any institute of training us about the MOOC। ऐसे ही FTPs, refresher course, orientation programs, STCs हम लोग करते हैं और वहाँ हम चीजों को सीख रहे हैं। It means as a teacher also we need to enhance our skills। हमें ये skills develop करनी है अपने में। And National Education Policy is also saying कि we need to develop skills। अगर हम इन चीजों को नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने को एक जो कहते हैं ना अपनी एकेडमिक पर्सनालिटी, वी कैन नॉट एनहांस आवर एकेडमिक पर्सनालिटी। तो युवल नोआ हरारी ने जो कहा कि होमोडियोस जो होंगे उसमें हमको आज ही से ये सोचना पड़ेगा कि भविष्य में यानी 2030-2050 के बाद हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे, यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। उन्होंने अपनी बुक में होमोडियोस में बहुत अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि अ स्टूडेंट और टीचर दे मस्ट हैव few skills like critical thinking, the ability to analyze information from the independent judgment, then creativity, learning agility, emotional intelligence, computational thinking. All these things will be very, very important for a teacher
to know about, to work on all these things. तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमको एज अ टीचर जानना बहुत जरूरी है. Just before proceeding, I just would like to tell you about one very good tool, the AI tool. अगर आप लोग डेमो देखना चाहते हो तो बीच में हम थोड़ा 10 मिनट क्या वो दिखाएं आपको कि हमें किस तरह के टूल्स, एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहते हैं. If you all are interested, then let's. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक एग्जांपल देखिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इफ दिखा यू आर दीजिए गोइंग टू मैडम, डेवलप, दिखा दीजिए प्लीज, दिखा Okay, दीजिए okay. डेमो. देखिए अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमें मूक डेवलप करने हैं या ई कंटेंट डेवलप करना है या हमको ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज डेवलप करने हैं. अब सारी चीजें देखिए हम लोग, बिकॉज वी आर टीचर्स, वी आर नॉट कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये चीजें हमको कैसे एआई टूल्स के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही बढ़िया एक अडोब का एक सॉफ्टवेयर है वो सिखाएंगे. उसका लिंक भी अभी हम आपको चैट में भेज देंगे. जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा हमारा. जी मैम. हाँ, जी दिख रहा है. पहले जैसे आप गूगल का पेज खोल लीजिए. सिंपल, व्हेनेवर यू हैव टू वर्क ऑन एनीथिंग यू नीड टू स्टार्ट गूगल, और यहाँ पर आप लिखिए फायरफ्लाई, FIRE, फायरफ्लाई अडोब. जैसे ही ये लिखेंगे आप, आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन खुल के आएगा. I'll send you that link also, Firefly Adobe. Now click on this. और यहाँ पे ये आपसे, बिकॉज इट हैज पेड वर्जन ऑल्सो और फ्री वर्जन भी है इसमें, और फ्री वर्जन में जितना आपको जरूरत होता है उतनी चीजें आप आराम से कर सकते हैं. ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली, वो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर. नाउ गेट फायरफ्लाई फ्री, क्लिक ऑन इट, then you will get many options there. बहुत सारे options यहाँ पे खुलते हैं. हम आपको एक दो option बताएंगे, then later on you can try these things. अब यहाँ पे आपसे वो कहता है कि मान लीजिए हमको क्या करना है कि हमारे पास टेक्स्ट है और हम कोई इमेज, क्योंकि हमने आपसे बताया whenever you are developing MOOC और ई कंटेंट और एनीथिंग you want to develop, सिंपल इवन पीपीटी भी अगर हम वो कर रहे हैं तो पीपीटी में भी हमको जो कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम एथिकल कंसिडरेशंस कहते हैं. तो अगर हम बहुत ज्यादा गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं फोटोग्राफ्स, दैट इज ऑल्सो नॉट एथिकल. तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कंटेंट है, कोई आप में से कुछ टॉपिक्स उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप जिस पे ई कंटेंट डेवलप करना चाहते हो, कोई टॉपिक लिखिए. तो अब हम उन्हीं टॉपिक्स को कि हम जो इमेजिन कर रहे हैं वो इमेजिनेशन को हम इमेज फॉर्म में कैसे लाएं एआई टूल्स के थ्रू, तो उसी के लिए हमने ये फायरफ्लाई वाला आपका जो ऑप्शन है उसको बताया है. नाउ आई एम कमिंग टू दिस ऑप्शन, टेक्स्ट टू इमेज. टेक्स्ट टू इमेज, यहाँ पर मान लीजिए आप में से किसी ने लिखा कोई चैट में कोई भी टॉपिक, सेव वाटर, ठीक है. मान लीजिए इस पे हम वो करते हैं, सेव वाटर पे या उस पे हम वो करते हैं, या हम यहाँ पे एक ऑप्शन देते हैं. मान लीजिए हम एक किसी छोटी सी बच्ची को चाहते हैं कि वो क्लाउड्स पे बैठी हो और अपना लैपटॉप में कुछ सेव वाटर से रिलेटेड बढ़िया सा वो बता रही हो, या सी का सीन दिखाना चाहते हैं कि कोई छोटी सी बालिका बैठी है, सी के ऊपर बैठी है और लैपटॉप में वर्क कर रही है और उसके विंग्स भी हैं. ऐसी इमेजिनेशन हमने, क्योंकि सिंपल फोटोज जो आप चाहते हैं वो तो आपको गूगल में मिल जाती हैं, लेकिन जो आप इमेजिन करते हैं वो फोटोज नहीं मिलती हैं. तो यू कैन क्रिएट दोज काइंड ऑफ फोटोज थ्रू दिस ऐप. अब ये देखिए, इफ आई राइट
create a image of a girl sitting inside the sea या ओशियन लिख देते हैं. दे दो, दोनों दे दो. Girl sitting inside the ocean with her laptop. गर्ल विद विंग्स हम कर देते हैं, इसमें कुछ और फनी सा डाल देते हैं. गर्ल विद विंग्स सिटिंग इनसाइड द ओशन विद हर लैपटॉप. हमने ये एक इमेजिन किया और ऐसे ऑप्शन, ऐसा प्रॉम्प्ट इसमें डाल दिया. एंड देन आई हैव गिवन दिस प्रॉम्प्ट और हम वेट करेंगे कि वो अब आपको कंप्यूटर कैसी इमेज जनरेट करके देता है. सी, अब इसमें आप जिस तरह के और प्रॉम्प्ट दे देंगे कि इंडियन गर्ल, तो वो इंडियन गर्ल दिखा देगा. आप वेशभूषा के बारे में, अब जैसे भी, तो ऐसी इमेज आपको ये क्रिएट करके दे देगा. फिर आपके पास और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं. इफ यू विल चूज दोज ऑप्शन कि उसका बैकग्राउंड ऐसा बन जाए, ये ऐसा हो जाए, तो यू कैन चेंज ऑल्सो. फिर इसके बाद मान लीजिए आप अपनी फोटो लगा के यहाँ पे इफ यू विल अपलोड योर इमेज, आप रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे देंगे कि इस इमेज को भी इस फीचर में डालिए. एंड इफ यू विल अपलोड योर इमेज हेयर, देन you can get the picture which will be resemble with your own photograph. तो इस तरह से आप कोई भी, फिर इसके बाद मान लीजिए इस फोटो को आपको चाहिए, आप सिंपल इसको डाउनलोड कर लीजिए, कॉपी करिए और अपने मूक में या अपने ई कंटेंट में आराम से इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इसको यूज करके देखिएगा. ट्रायल एंड एरर से बहुत सारी चीजें आप इसको बना सकते हैं. ओके, एनी क्वेश्चन? ये इसका हमने वो भी चैट में भेज दिया है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, ये तो था कि टेक्स्ट से हम इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज जनरेटिव फिल. कई बार क्या होता है कि हम कोई फोटोग्राफ खींचते हैं, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता है, या हमको लगता है कि ये इमेज ऐसी है तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल बदल दें. तो उसको कैसे कर सकते हैं? दैट विल हैपन विद दिस टूल. दिस इज जनरेटिव फिल. अब इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हम एक फोटो को अपलोड करते हैं. ये मान लीजिए ये एक छोटी सी बच्ची है, उसका फोटो हमने लिया, हमने देखा इसके सर पे बाल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसके सिर पे हम बढ़िया सा हैट पहना दें. तो आई विल सेलेक्ट दैट पार्ट लाइक दिस, ऐसे. और यहाँ पे देखिए इंसर्ट लिखा है ना, इंसर्ट. और उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखें, कहाँ पे इंसर्ट करना है, ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया. और यहाँ पे हम कह दें उसे कि रेड हैट, और उससे कहें कि यहाँ पे रेड हैट को जनरेट कर दो. आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से वो किया गया है. रेड हैट उसने उसको पहना दे. कैप लिखेंगे तो वो राउंड वाली कैप. बाल अगर लिख देंगे हेयर, तो वो यहाँ पे बाल बना देंगे. ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर, व्हाटएवर यू वांट यू कैन इंसर्ट इन एन इमेज. आप उसके गले में माला पहनाना चाहें, उसके कानों में बाली पहनाना चाहें, व्हाटएवर यू वांट, और बिल्कुल नेचुरल पिक्चर आपको बना के ये देता है. और यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको दे देता है कि आप उसके हेयर का स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे लाइक दिस. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड टूल विच यू कैन यूज फॉर फ्री इन योर ई कंटेंट. आप इसको रखना चाहें तो यहाँ पे कीप पे दबा दीजिए, नहीं रखना चाहें तो इसको कैंसिल कर दीजिए. एंड इवन इफ यू वांट टू डाउनलोड इट, यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो. इफ यू वांट टू शेयर इट, यू कैन शेयर इट ऑल्सो.
अब इसी तरह से हम आते हैं एक दूसरे ऑप्शन में इसी में कि मान लीजिए हमें अगेन आई चूज वन फोटोग्राफ. नाउ यू विल सी, ये एक फोटोग्राफ है और हमने देखा कि फोटोग्राफ तो बहुत अच्छी खींची थी, लेकिन बीच में ये हिस्सा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, और इसको हम रिमूव करके चाहते हैं कि जैसी ये फर्श है वैसा ही हमको दिखने लगे. तो देन अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल चूज रिमूव, और यहाँ पे इस हिस्से को हम चूज कर लेंगे. ये even if I'll choose this, it will also be removed like this. ये हमने लिया और कह दिया इससे remove. Now you will see कि how nicely it will remove that particular content from here, that particular part. ये देखिए, आपको कहीं से यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज यहाँ पे कहीं थी. और यहाँ पे ही आप क्या करिए, अगेन यू कैन इंसर्ट फ्यू थिंग्स. यानी हम इसको रखना चाहते हैं तो हमने कीप कर दिया. फिर अगेन आई एम इंसर्टिंग फ्यू थिंग्स कि यहाँ पे हम कह दें कि यहाँ पे अब एक बास्केट ऑफ फ्लावर्स रख दे वो इस जगह पे. आई सेलेक्ट दिस पार्ट and I'll give prompt basket of flowers, basket of different color flowers, generate. See, ये अलग अलग वो दे दिए उसने, और कहीं से ऐसा नहीं फील होता है कि ये अलग से रखी गई, लग रहा है कि जो क्लिक किया है उसी तरह से है. And if you want to keep it, then click on keep, otherwise you can cancel it. In this way you can get many other things also, many other options are also there. ये दो ऑप्शन जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इवन यहाँ पे अभी इनका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस में है. जनरेट अ वेक्टर, जनरेट अ टेम्पलेट, मेनी अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर. तो आप इस चीज को ट्रायल एंड एरर से सीखिए तो आपको बहुत मजा आएगा. और साथ में इसमें आप जितनी चीजें जो बना रहे हैं ये कॉपीराइट फ्री होती हैं, ये आपकी सेल्फ क्रिएटिव इमेजेस हैं, इसलिए इसमें कॉपीराइट का भी इशू नहीं आता है. तो सो व्हेनेवर यू वांट टू डेवलप सम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और ई कंटेंट, यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म. Okay, if you are having any question or query, you can ask, otherwise I'll proceed further. Okay, now you can see that I was talking about the artificial intelligence which you are going to use in your teaching and learning process. Now, how artificial intelligence is being, because these days it is increasingly integrated into education in various ways with the aim of enhancing learning experiences, personalizing education, improving overall educational outcome. So how we can do all these things, what we need to do. Now we can see further a few things. I am escaping from here because time is running very fast. Now question is, why we need to know about the artificial intelligence? Again, I'll tell you, because we are teachers, and as a teacher, we need to know about all these things just to enhance our academic personality. Now, if I'll ask question from all of you that what are the obligations of teachers at higher education level, आपका क्या जवाब होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी ड्यूटीज हैं, हमको करनी ही करनी है? Yes, please let me know. As a higher education teacher, what are the obligations? Which are teaching, very nice, okay. Teaching and giving the wide scope of sky a student can do there. Okay. Okay. And practical knowledge
Making a responsible citizen. Responsible citizen, practical knowledge. Okay. Responsible towards society. Responsible towards society, ma'am. Responsible citizen. Okay. New informative ideas for the students. Innovative ideas. Enhancing knowledge and experiences. Okay, enhancing knowledge and experiences. Okay, now if you will see that in today's world, especially in today's era when we are having many policies from the UGC, from the higher education, we need to do many things. आपने देखा होगा कि अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, we will not be able to fulfill the criteria of our API form, academic performance indicator. अब इसमें क्या होता है? We have 5 main obligations which we need to develop in us. पहली क्या होती? Teaching, as told by many teachers, teaching. Then administrative work. हमें invigilation, examinations, and many other things we need to do. Administration. Then research work. Research work, extension services, and consultancy. यही चीजें आपके API format में आ जाती हैं जो आपको करनी होती है. I'm not going to discuss more about the API, but I would like to throw light in this in this API format, which because there are 3 main categories of API. Category 1, which is related to teaching and administrative work. Category 2, which is also related to extension services and administrative work. And third, which is very, very important, and for that you need all types of documents also. तीसरा, जिसको हम कहते हैं रिसर्च रिलेटेड, और रिसर्च रिलेटेड में फर्दर देयर आर 5 अदर सब कैटेगरीज. उसी के जो सब कैटेगरी 3F है, उसमें कहा गया है कि एज अ टीचर यू नीड टू नो अबाउट creation of ICT mediated teaching, learning, pedagogy, and content and development of new and innovative courses and curricula. And if you are taking the help of AI tools, it will be very, very beneficial to all of you. कि कैसे आप इन चीजों को क्रिएट करें, कैसे इन चीजों को आप डेवलप करें. आप देखिए उसमें बहुत अच्छे से ये मेंशन किया गया है कि फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागॉजी, second is design of new curricula and courses, third is related to massive open online courses, means as a teacher now you need to develop these courses also, and fourth is e-content, means you need to develop e-content, but not only copy paste it, you need to follow all the guidelines of developing e-content, and then you need to, और इन सब के आपको क्या होते हैं, आपके API में मार्क्स मिलते हैं. That is why it is mandatory, it is very important to use AI tools to enhance these parts of our API. अब इसके अलावा आप देखिए कि टीचिंग टूल्स, मेथोडोलॉजी प्लेटफॉर्म, वी नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स फॉर ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग, एंड फॉर many other things we need to know about all these things. अब आप देखिए working with AI, यानी if we are using AI, if we are using or if we are taking the help of AI, it will make our work very easy. लेकिन यहाँ पे फिर से हम बार बार वही कहेंगे कि जनरेटिव AI का responsible use, that is very important, and if you will not use it in a proper way, it will be very, very difficult for you. अगर आप कहीं पर भी आपने देखा होगा कि प्लेगरिज्म में पकड़े जाते हैं तो आपका सारा किया काम बेकार हो जाता है. So that is why again and again I'm telling you that whenever you are using this particular AI, you need to know about many other things also, many other related things also. तो यहाँ पर हम कुछ चीजें और आपको बताना चाहते हैं कि जब आप AI को यूज करते हैं तो किस तरह की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और स्किल्स कौन कौन सी आपके पास होनी चाहिए. Just let me, I think my screen is not sharing, just a moment. स्क्रीन दिख रहा है मेरा कि नहीं, कुछ मुझे लग रहा है कि Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप नहीं, अब नहीं दिख रहा है स्क्रीन, अब नहीं दिख रहा.
ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट मैम, ये हाँ शायद कुछ बता रही है इसमें। हाँ, यहाँ पे जो हम आपको मेन बताना चाह रहे थे कि हम कैसे इन चीजों को, अगर हम इन कुछ स्किल्स हमको हमारे पास होनी बहुत जरूरी है एज अ टीचर, जिसको हम कहते हैं 5 T's. Whenever we are developing these kind of things with the help of AI, we need to enhance these 5 T's in us. कैसे? अब देखिए कि teaching skills have changed quite a bit and teachers have shown how they can adapt. कैसे हम चीजों को adapt कर सकते हैं, और जो NEP है उसमें भी बहुत अच्छे से इन चीजों को बताया गया है कि how to upskill ourselves, upskill and reskill, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा चेंज हो गया है. तो नाउ आई विल फोकस ऑन 5 T's की क्या जरूरी है इसमें. और जैसे आपने देखा होगा कि जो 2020 का जो हमारा ईयर था, दैट वाज कॉल्ड ईयर ऑफ स्मॉल थिंग्स. ईयर ऑफ स्मॉल थिंग्स का मतलब क्या है कि उस साल, वो साल ऐसा था जिसकी छोटी छोटी चीजों ने भी हमको बड़े बड़े लेसन दिए थे. मीन्स दिस ईयर हैज टॉट ग्रेट लेसन्स टू एवरीवन. कोविड जब आया था तो हम इसको ईयर ऑफ स्मॉल थिंग्स कहते हैं. मीन्स टीचर्स अक्रॉस द ग्लोब आर नो एक्सेप्शन, बिकॉज हर जगह जब वो आया था तो टीचर्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं थे. दे हैव नॉट ओनली लर्न the art of virtual classroom but also have designed the curriculum overnight to meet this new demand. कैसे उन्होंने चीजों को वो किया था, बहुत बढ़िया से वो किया था. तो यहाँ पे ही हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि whenever you are using or you are developing AI enhanced teaching or you are developing AI in your developing MOOC or OER or e-content, then what you can do. Now, first of all, first T is related to transition. ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एजुकेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम टू मॉडर्न क्लासरूम. आपने देखा होगा कैसे धीरे धीरे ट्रांजिशन आए, स्पेशली आफ्टर 2020. जो चीजें हम सोचते थे पहले कि हम ऐसा करेंगे, कभी ऐसा होगा, और हमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि इस तरह से ऑनलाइन बैठ के हम पूरे भारत में अलग अलग जगह में बैठ के एक ही प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे चीजें को. यानी एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है. और AI इज फर्दर एक्सेलरेटिंग दिस ट्रांजिशन by personalizing learning experiences and automating administrative tasks also. So teachers must embrace these changes. ये जो चेंज हैं, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि गौतम बुद्धा said that there is only one law which is unchangeable, that is law of change. यानी एक परिवर्तन का नियम ही ऐसा नियम है जो अपरिवर्तनीय है. तो टीचर को भी इसी तरह से अपने को परिवर्तनशील रखना पड़ेगा. और एल्विन टॉफलर ने भी सजेस्ट किया है कि जो 21st सेंचुरी है उसमें इलिटरेट कौन होगा? वो नहीं होगा जो पढ़ या लिख नहीं सकता है. द पर्सन who will be illiterate, the person who is not willing to learn, unlearn and relearn. So teachers must to open to this continuous journey of adaptation. यानी जो भी ट्रांजिशन हमारे सोसाइटी में आ रहा है, जो हमारे टेक्नोलॉजी में आ रहा है, टीचर नीड टू अडेप्ट दैट पर्टिकुलर चेंज, दैट ट्रांजिशन. तो पहला टी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी टीचर के लिए. देन सेकेंड इज टेक्नोलॉजी. मीन्स AI is reshaping the educational landscape and making technological proficiency a critical skill for teachers. जितने भी हमारे AI driven learning management system है, आपने देखा होगा कि if we want to develop MOOC,
we need to know many other things which are related to the MOOC. यानी हम सिर्फ सोच लें कि अरे हम तो MOOC बना ही लेंगे, हम कर ही लेंगे, लेकिन हमको LMS नहीं पता, हमको CMS नहीं पता, हमें इनके बारे में बेसिक चीजें नहीं पता, then how I will be able to develop MOOC? So from AI driven learning management system to the intelligent tutoring system, technology can enhance teaching effectiveness and students' engagement also. So teachers need to view AI as a partner, leveraging it to create more interactive and personalized learning experiences rather than seeing it as a hindrance. कई बार हम सोचते हैं अरे इतने सारे टूल हैं, हम कैसे यूज करें, क्या करें. जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया फायरफ्लाई का, तो आप देखिए अगर इस तरह के छोटे छोटे टूल्स को आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं, बहुत सारी बार आप देखिए कि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते कि कैसे इस पीपीटी को बनाएं, कैसे हम इसको यूनिक बनाएं, कैसे हम इसको अपने टीचिंग लर्निंग में बच्चों को बताएं. क्योंकि जब हम बताने चलते हैं ना, तो आप देखिए कि बिकॉज वी आर बिलोंगिंग टू डिजिटल इमिग्रेंट और डिजिटल नेटिव फैमिली ऑफ डिजिटल जनरेशन, लेकिन जो बच्चे हैं दे आर डिजिटल इनहेबिटेंट, तो कुछ भी बताने चलते हैं वो बच्चे हमसे पहले से बहुत कुछ जानते हैं. तो हमको अपने कंटेंट को यूनिक कैसे बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ माय सन आल्सो कि वन डे आई वाज स्ट्रगलिंग टू ट्रांसलेट सम कंटेंट. वो मेरे पास 15 पेजेस हिंदी का कंटेंट आया था जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्म में. अब हम बहुत देर से सोच रहे कैसे करें इसको, फिर हमने सोचा चलो इसको पहले टाइप, क्योंकि वो इमेज फॉर्म में था, कि पहले इसको टाइप करते हैं, फिर गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, तो इसमें घंटों टाइम लगे. तो माय सन वाज वाचिंग मी एंड ही आस्क्ड मी, मम्मा व्हाट आर यू डूइंग? आई टोल्ड हिम दैट आई एम ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट, हमको ये बहुत जल्दी भेजना था लेकिन ये टाइम लगेगा. उसने कहा जस्ट गिव इट टू मी. हमने उसको दिया और उसने 10 सेकेंड में उस पूरे 15 पेजेस को ट्रांसलेट करके करेक्ट इंग्लिश में एडिटेबल फॉर्म में वर्ड के फाइल में हमको दे दिया. ये जनरेशन है हमारी डिजिटल इनहेबिटेंट. मींस एज अ टीचर वी आल्सो नीड टू लर्न बेसिक थिंग्स जो हमारे काम की हैं, जो हमारे लिए जरूरी हैं. हमको इन चीजों को सीखना, ऐसे टूल्स को जानना बहुत जरूरी. सो थर्ड वन इज टूल्स. टूल्स जिसमें हम आपको बार बार बता रहे हैं कि AI इंट्रोड्यूसेस न्यू टूल्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, लाइक प्रिडिक्टिव एनालिसिस टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग. अभी देखिए हम लोग के पास ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि रोबो टीचर्स तो आपने देख ही लिए हैं, साथ में ऐसे वो आ गए हैं कि बच्चों का स्पैन ऑफ अटेंशन, बच्चों का बिहेवियर पैटर्न, बच्चों का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंडसेट, इफ वी वांट टू रीड ऑल दीज थिंग्स वी आर हैविंग AI टूल्स. हम उनके हेड गेयर एक पहना देते हैं और हमें सारा कुछ उनके बारे में मॉनिटरिंग करके कंप्यूटर में वो टूल बता देता है. वो हमें AI जो टूल है वो सब बता देता है. एंड राइट नाउ वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ AI ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन आल्सो. तो आप देखिए कि दीज टूल्स वंस कंसिडर ऑप्शनल आर नाउ इसेंशियल. अब इनके बिना हमारा काम ही नहीं चलना है. So teachers who can master these innovative tools will lead the way in creating a more engaging and effective educational environment. So that is why this third T is also very, very important for all of us. The next T is training, means continuous professional development, and it is also a crucial in AI enhanced educational landscape. Teachers need to stay updated with at least AI technologies and pedagogical strategies. Engaging in lifelong learning through courses, through workshops. आपके लिए जैसे आपने देखा होगा these days it is mandatory for all the teachers to attend that NEP course, जो कि MMTTC हम लोगों को UGC इस समय प्रोवाइड करा दी. हर एक के लिए अटेंड करना जरूरी. Why? Just for CPD, continuous professional development, and engaging ourselves in these with the help of all these workshops, all these FTPs. It is enhancing our academic personality, means the ability to integrate AI effectively into our teaching practices will set a successful teachers apart.
हम तभी सक्सेसफुल टीचर बन सकते हैं, हम अगर ट्रेडिशनल वे पे ही चलते रहेंगे तो शायद हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा. सो फॉर आवर सर्वाइवल we need to know about all these latest technologies also. फिर इसी तरह से 5th T जो है that is touch. टच का मतलब यहाँ पे क्या है, आप देखिए कभी भी हम फेस टू फेस क्लास में पढ़ा रहे हों और बच्चे से बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर के कह दें, ओह वेरी गुड, शाबाश, यू हैव डन अ गुड जॉब, कितना फर्क पड़ता है इन चीजों का. लेकिन when we are teaching with the help of all these technologies, जब मशीन पढ़ा रही है, मशीन में काम कौन करवा रहा है, ह्यूमन बीइंग. So there should be human touch in machines also. यानी value enhanced, emotional aspect or human touch, all these things should be there. Means despite the advancement in AI, the human touch in education remains irreplaceable. उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है. ह्यूमन टच देना बहुत जरूरी है. AI can provide data driven insight, automatic tasks, but empathy, inspiration, personal connection that teachers offer are vital. And with the help of softwares, with the help of all these things, we can inculcate, we can integrate in our teaching learning process also. Teachers must bring their unique touch to every interaction, fostering a supportive and motivating learning environment. आपने देखा होगा कि अभी तो हमको बहुत सारे आप लोगों के फेसेस दिख रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑन है. Otherwise, most of the time, what is happening? Most of the time, participants are switching off their audio and video. Or what resource person is feeling? कि हम तो मशीन को, स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं, हमने अपना 1.5 घंटे 2 घंटे का काम खत्म कर दिया, दैट इज इनफ, एक फॉर्मेलिटी हो रही है, तो दैट इज नॉट गुड. तो हमको यहाँ पर जो पर्सनल टच है वो किसी न किसी डिजिटल टूल, इंटरैक्शन इसके माध्यम से देते रहना चाहिए. कि जो AI की कैपेबिलिटीज है, बिकॉज राइट नाउ वी आर हैविंग मेनी कोलैबोरेटिव टूल्स आल्सो. कि अभी हम यहाँ पे अगर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू एक्टिविटी कराना चाहें तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है उनको करने में. अभी जैसे हमने आपको फायरफ्लाई भी बताया, इसी तरह के गूगल में भी बहुत सारे इंटरैक्टिव और कोलैबोरेटिव टूल हैं कि हम यहाँ पे करेंगे, आप वहाँ पे बैठ के करेंगे और यहाँ पे हमको स्क्रीन पे दिखता रहेगा व्हाट यू आर डूइंग. तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जस्ट AI is not just a tool but a transformative force in education, and how to use it, it depends on you only, that how you are using all these technologies. So by mastering all these 5 T's, transition, technology, tools, training and touch, teachers can harness the AI to enhance their teaching, meet the demand of the future. जो हमने कहा है ना, हमारी future generation अल्फा को पढ़ाना है, and continue to shape the lives of their students very positively. So I think this is enough for today, and I tried to cover most of the part which is related to AI, and with 2 lines again, 2 lines. I would like to wind up today's interaction, and if you will have any query, you can ask. 2 lines की जो हम बात कर रहे हैं कि whenever we are working in this virtual world, we can say that कि बड़ा अजीब सा फलसफा है इस वर्चुअल दुनिया का, बड़ा अजीब सा फलसफा है इस वर्चुअल दुनिया का, क्योंकि यहाँ पर तीर भी चलाने हैं, क्योंकि यहाँ पर तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, परिंदे भी बचाने, क्योंकि इसको यूज किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा. But again and again I'll say you that we need to consider ethical issues also. Then it is a very, very good technology which we can adapt in our teaching and learning process. Thank you everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Any query? Yes. Thank you Yes. very much. Thank you, ma'am. Yes, someone is asking a question, please. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. If anyone Thank you, wants to everyone. ask the Thank you, question. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, I have one question. Yes, Yes, ma'am. please, yes, please. Thank you, ma'am. I am Dr. Chandrani Acharya from Kolkata. Yes, Dr. ma'am. Thank you, ma'am. I have Please बाकी लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए. Dr. Please Chandran, mute your mic. Mute your mic. others please mute your mic. Yes, ma'am. Yes, I am Dr. Chandrani from Kolkata.
Yes, ma'am. We made one orientation workshop at NIPA, Delhi. Yes, ma'am. So I have one question Yeah. that we are talking about that AI learning tools, right? So if you could give us some suggestions or some example of designing such learning tools which we can teach our trainee teachers to use in school. Some examples or some you can provide in our group also through our resource persons in this university. Okay. So those examples or some designs of learning tools through AI on any subject, just for illustration. If we can get it, then it will be very helpful for us. Okay. Okay. Thank you. And have recognized you also that we met long back in Thank you very much, Dr. Kiran Lataji. And you have elaborated the topic in such an interesting way, and it was really informative. And I do hope that our student participants will get benefit, definitely, and they will apply such kind of examples in their daily life also. So nice of you, madam. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I have shared because few clips also I have Thank you, shared. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am.